السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم خلاصہ کرنے والے ہیں مولانا ناصر مدنی صاحب کا، جو کہ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹک ٹاکر بھی ہیں مشہور و معروف، جو آن لائن آ کر لوگوں کو جگتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ جناب یہ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے جگت باز بھی انسان ہیں، تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام پھیلانے کی صلاح کرتے ہیں، تو ان کو اصلاح کرنی چاہیے اسلام کے بارے میں، نہ کہ یہ ٹک ٹاک پر جا کے لوگوں سے لائف میں گفٹ مانگے اور الٹی سیدھی جگتیں کریں۔ تو جناب مولانا منظور شیر پنجاب صاحب نے ان کے لیے بہت اچھا میسج اور پیغام دیا اپنی ویڈیو کے ذریعے، تو مولانا ناصر مدنی صاحب کو چاہیے کہ ان کی ویڈیو کو دیکھے اور دیکھ کر اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ ایک عالم دین ہے تو اس کو عالم دین بن کے رہنا چاہیے، نہ کہ ایک جگت باز اور مراسی بنے۔ جناب اسٹیج پر بیٹھ کے لوگوں کو جگتیں سناتا ہے، جناب ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کریں، ٹھیک کریں، اس کے بعد اصلاح کریں۔ تو جناب ان کا کام اسلام پھیلانے کا ہے، نہ کہ جگتیں کرنے کا ہے۔ تو آئیے جناب مولانا منظور صاحب شیر پنجاب ان کے لیے کیا میسج لے کے آئے، آئیے ویڈیو کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو ویڈیو اگر دوستو آپ کو اچھی لگے کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل منور اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پہ داڑھی کو پورا نہیں کیا۔ گاڑیوں کے اتنے نام آتے ہیں، قرآن پاک نہیں آتا، کتنی دکھ والی بات ہے۔ یاسر شامی اس طرح کی وہ جس طرح باتیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ محک ملک ہے نا، تو اس کو میں نے وہ کہہ دیا اس کے اوپر تم نے کٹا ہی پھینک دینا تھا۔ وہ ایک بات کی میں نے، محک ملک نے کہا کہ مولانا منظور سے میری ملاقات کرواؤ، تو اس نے کہا مدنی صاحب کے بارے میں آپ نے اتنی کی ہے کہ اس پہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہے اس کیٹاگری کا۔ یہ تو اس نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کو کافر نہ کہو، احترام کرو، مجھے تو شک ہے وہ کسی دن یہ نہ کہہ دے کہ شیطان صاحب حافظہ اللہ ہوتا ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا ناصر مدنی اپنے نالوں نا علامہ لفظ لا دے۔ میں پتہ ہے یہ علامے دا معنی کی کہ جی دی آواز اچھی ہو گئی، وہ بیڑا کر کے جی میں کہ صاحب نے تو سلطان رہی سب تو بڑا علامہ خدا دی۔ میں کہاں گا ناصر مدنی صاحب اپنی گڈی دے مگروں علامہ ٹھا دیو، تو آپ لکھائے ہیں مدنی یہ گلاں نہ کرے گا، لوگ پھر مینوں کہندے نے تیرا پتر انج کردا ابا، پھر اوتھے کی کرے دس۔ میں نے نا اس جو پروگرام ہے نا، جو میں نے اس کو روکا تھا کہ علامہ لفظ جو ہے یہ مٹا دو، گاڑی کے پیچھے آپ نے لکھوایا ہے، اس میں نے دو لفظ اور بھی بولے تھے، چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب کے بارے میں اور حافظ طارق محمود یزدانی صاحب کے بارے میں۔ تو حالانکہ وہ دونوں آدمی بڑے عظیم آدمی ہیں اور بڑے مجاہد بندے ہیں، اور بڑے خاندانی طور پہ بھی ان کا ایک مقام ہے، اور پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی ایک نام ہے۔ اچھا، ان دونوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی محبت ہے لوگوں کی جو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کی دونوں کی تقریروں میں نا علامہ صاحب کی جھلک نظر آتی ہے، تو ان کے گفتگو میں بھی وہ پیار نظر آتا ہے، اور گرجتے ہیں برستے ہیں جب وہ اللہ کے فضل چمکتے ہیں۔ تو ان دونوں نے تائید کیا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے۔ لیکن مولانا صاحب مدنی صاحب بھی تو جگتوں میں چمکتے ہیں نا، گرجتے وہ تو ہے نا، لیکن اس نے بجائے وہ مٹانے کے وہ نہیں بات کو نہیں مانا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے آپ کے کہنے پہ گاڑی کے پیچھے علامہ لکھا ہوا ہے، وہ مٹایا نہیں ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پہ داڑھی کو پورا نہیں کیا، تو وہ علامہ کیسے مٹائے؟ کئی دفعہ میں نے مدنی صاحب سے کہا ہے اپنی اصلاح کرو، اور اس کو گاڑیوں کے نام اتنے یاد ہیں کہ میرا خیال ہے جو آئندہ سال ماڈل بننا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے کہ یہ اب وہ آ رہی ہے گاڑی۔ گاڑیوں کے اتنے نام آتے ہیں، قرآن پاک نہیں آتا، کتنی دکھ والی بات ہے۔ کیا بات، وہ قرآن پاک کو یاد نہیں کرتا، گاڑیوں کے نام یاد کرتا ہے۔ پیسے کمانے کی اس کو اتنی سمجھ ہے، اس کو آخرت بنانے کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔
दूसरी बात ये है, मुझे ये बताएं कि अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये अब किसी को कहता मुझे शेर मारो, मुझे फुल मारो, टिकटॉक पे कहते जितनी टिकटॉक में असल में मसला ये है कि आज लाइव आता है, जो ज्यादा बदतमीजी और बेहुदा बातें या जुगते मारता है उसको ज्यादा वो फूल और शेर बजते हैं, लोग सेंड करते हैं, वो फिर वो कैश करवा लेते हैं, वो पैसे मिलते हैं उसके। जलसे वगैरह आजकल शायद इतने नहीं हो रहे उनके, तो उनका काम ये है कि पूरी रात बैठ के टिकटॉक पे जुगते मारना। वो वीडियो जरा देख लें आप पहले। शेर आ गया, शेर सदके 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 मुबारका 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 मुबारका। मानो बिल्ली नहीं रिसा, म्याऊ म्याऊ मेरा जान। आज सदके कसमें खुशी ना पसीने आ गए नहीं, और नहीं रिसा आज नहीं रिसा, आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं शान मलक, आज नहीं आज नहीं आज नहीं। मानो बिल्ली दे होंदे आज नहीं। आ वे फुल्लां दियां बारिशां हो रही ने। और राणा साहब तुसी कित्थे छुपे रहे, इधर ही आ जाया करो, साडी बरात ते आ जाया करो। शान तेरे 200 फुल्लां ना की बनना, मानो बिल्ली बैठी है शरीको सड़ो, कहंदा ही 200 स्कोर 200 स्कोर 300 स्कोर सड़ो छोट भाई। गुड 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 गुड, क्या बात है क्या बात है। मैं क्या सी ना शेर आ जाना है राणा साहब, मैं क्या सी शेर आ जाना, आ गया कि नहीं। इधर वेख मानो बिल्ली ने वेला ऐसा पकाया कि इस तो बाद आ वेखो जहाज जहाज। गुड भाई गुड 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 गुड, क्या बात है। मुबारका मुबारका। और जहाज आगे जहाज जहाज आ रहे ने जहाज। बुरी बातें करके और बेहुदा बातें करके ये चीज कहता है मुझे फुल मारो। इस तरह के बंदे को तो गमले समेत फुल मारना चाहिए। ठीक, ये शेर मारो पैसे दो, फूल मारो पैसे दो, यार खुदा के लिए हर चीज़ पैसे नहीं होते। मौलाना साहब यकीन माने मैं यहाँ पे आपकी ये इसलिए तारीफ करना पसंद करूंगा कि देखें मजाक होता है, एक अच्छे हंसमुख होना चाहिए इंसान को। आपने भी अभी किया, कितना बेहतरीन है। यानी इसमें कोई शरीयत के मुताबिक भी ये नहीं कोई कह सकता कि ये कोई गलत है। यहाँ मेरे साथ ना बेटा अंजला अब्बास गाड़ी चलाता है, तो इसने ना वो बत्ती लगवा ली जो वो पुलिस वालों की होती है। तो मैंने कहा यार ये नहीं लगवानी चाहिए। तो कहने लगा पुलिस वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, सारे अफसर, सारा पाकिस्तान, हर मकातबे फिक्र का बंदा आपसे प्यार करता है। आप जंगलों में जाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, रात को अंधेरों में कच्चे रास्तों में, तो हमने ये इसलिए लाइट लगवाई है कि ज़रा अल्लाह महफूज रखे। तो ये ना उसने लगवा ली। तो एक जगह हम गुजर रहे थे, वो हाँ नाके से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा ये बत्ती क्यों लगाई है। तो ये कहता है ये सरकारी गाड़ी है। तो वो कहते हैं कौन है सरकारी। मैं कहा यार वो छोटी सरकारी नहीं ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, तो डेरे मल्ला सिंह ਦੇ ਨਾਲ सरकारी है, उतों की गड्डी सरकारी। मैं आख्या यार इस तरह की बात मैंने कहा ना किया करो यार, तो ये तुझे लगानी नहीं चाहिए थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अल्लाह जानता है दुनिया को ये कहना मुझे शेर मारो, मुझे जहाज मारो, मुझे फूल मारो, पैसे लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए बेहुदा बातें करना, बेहूदगी के वजह अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये इस तरह के माल में कैसे बरकत आएगी। यासर शामी वो कहता इंज करता ना, तो भी नाल लगा। ये यासर शामी हमारे मिजाज का आदमी नहीं है। उसके साथ हम बैठेंगे बातें इस तरह की, वो जिस तरह बातें करता है म्यूं म्यूं म्यूं, तो क्या करता है वो। लोगों के साथ जो संजीदा है ना, उनके साथ उसकी हिम्मत भी नहीं होती ऐसी बातें करने की। यानी मदनी साहब उसको खुद ये मौका देते हैं, खुद कहते हैं कि ऐसा करो। जब खुद कहेगा तो ऐसे ही होगा। हमें हम मौका देते हैं। ये बात आपने सही फरमाई। आपके सामने यासर शामी ऐसे म्यूं म्यूं करे, आपने इधर से लाके मारनी कि तेरी ऐसी थी। आपको बात बताऊं एक और, वो महक मलक है ना, तो उसको मैंने वो कह दिया को इसके ऊपर तुमने कट्टा ही फेंक देना था। वो एक बात की मैंने, तो उसको पता चला, तो उसने भी मुझे मेरे बारे में कहा कि ये मौलवी मंजूर भट्टू जो है ना, उसने भट्टू कह दिया। चलो बहरहाल भट्टू भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। तो उसने कह दिया ये मौलवी मंजूर भट्टू जो है, इसने ऐसे मेरे बारे में कहा है, मौलवियों को शर्म आनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। मौलाना साजिदुर रहमान साहब हैं, शेखुल हदीस हैं, 149 EB आरफ वाला के, उनका एक शागिर्द है,
उसके सामने किसी जगह पे वो महक मलिक ने कहा कि मौलाना मंजूर से मेरी मुलाकात करवाओ, या मुझे उनके पास ले चलो, या उनको मेरे पास ले आओ, मैंने उनसे माजरत करनी है। जब से मैंने उनके बारे में ये बात की है मुझे तकलीफ है कि मैंने क्यों ये बात की है। तो उसने कहा मदनी साहब के बारे में आपने इतनी की है कि उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए कि वो है ही इस कैटेगरी का। बात ये है कि मैंने तो वो महक मलिक के बारे में बात की तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मौलाना साहब ने मुझे ये बात जो की है तो ये इस्लाह के तौर पे की है। अगर गुस्सा भी उन्होंने किया है तो इसी बात पे किया है कि मुझ पे अगर कोई पैसे फेंकता है तो वो अपना माल दीन पे लगाए, इधर लगाने की बजाय। तो मैंने बात कर दी, उसने माजरत का कहा कि मुझे माजरत करनी चाहिए, मैं मौलाना साहब से माजरत करना चाहती हूँ। बात ये है कि मदनी को नहीं कहा, मदनी उसको जाती तौर पे हिटका रहा था, ये तो मेरे पाँव की बात है, ये तो मेरे ये है कि मैं ये कहूँगा कि ये लोग भी हमारा एहतराम करते हैं तो दीन की वजह से हमें मिंबर और मसल्ले का और तबलीग का और इस मिशन का एहतराम करना चाहिए। हमारा मनसब जो है, अपने मनसब को देखेंगे कितना बड़ा मनसब है, तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए। वो लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन मदनी साहब से उसने नहीं कहा मदनी से कि मैं माजरत करूँगा, वो इसलिए कि वो कहता है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है इसने, तो जो इल्ज़ाम लगाए वो उसका कौन फिर एहतराम करता है। अच्छा, सजाद जानी ने वैसे कहा है कि उसने दावत दी है मदनी को, उसने कहा मदनी साहब तुसी इंज करो, तुसी जुगता ही मार सकते हो, कुरान और हदीस ते सुना नहीं सकते, तो आंदा कि तुसी साडे कोल आ जाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेट ड्रामे तड़ी फिरांगे। हाँ, तो मदनी साहब को मैं गुजारिश करूंगा उसकी बात पे गौर करो। अब हमें बदनाम कर रहे हो, उलमा को बदनाम करने वाली बातें, उन लोगों से हमें बातें करवा रहे हो जो लोग हमारे नाम का इतना एहतराम करते हैं कि ये मौलवी हैं, कुरान और हदीस सुनाते हैं। तो आप हमारी इज्जत जो है ना लोगों के दिलों में ख़त्म कर रहे हैं, इस्लाम जो है बदनाम हो रहा है। खुदा के लिए ऐसी ऐसी बातें करवाने से गुरेज करो। मदनी साहब से तो मैं आखिरी बात यही करूँगा कि सरासर मोम हो या संग हो जा, है जी, या तो उक्का मुक्का ही कोई सरंगी ले लेते या फिर उक्का मुक्का कुरान हदीस दे होते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मैं कहता हूँ इस वक्त उसका नाम जरूर है, मशहूर जरूर है। एक होता है मशहूर होना, एक होता है मकबूल होना। मशहूरी जो है ना वो बुरी तरह की भी हो सकती है, लेकिन मकबूल वो आदमी होता है जो अच्छे काम जिससे अल्लाह लेता है। यार हमने अगर दुनिया का माल कमाने के लिए आज तक नहीं कोई सोचा तो ना ही अल्लाह हमें ये सोच दे। कम से कम 50 साल के करीब होने वाला है जो अरसा जो अल्लाह ने हमें अपने दीन के लिए पसंद किया है, तो अल्लाह हमें भी कपड़े भी अच्छे पहनाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, लोगों को अल्लाह ने हमारे बारे में मोहब्बत भी दी है, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। मदनी साहब को स्टार्ट में लोगों ने वाकई में मोहब्बत दी, फिर उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिस तरह कुरान मजीद गलत पढ़ना या बेहुदा गंदी जुगतें मारनी, और या फिर सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे बना कि जब उन्होंने कादियानियों पे और कहा कि इनको काफिर ना कहो और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं, तो इस पे फिर बड़ा मामला बना। फिर तमाम मसालिक हैं उनके उलमा इकराम ने इस पे बड़ी तनकीद की। तो इस पे असल में लोग इससे मुतनफ़र हो चुके हैं। मशहूर तो है लेकिन वो नेगेटिव सेंस में है, मनफी मशहूर है। बात आप बिल्कुल आपने बात सच फरमाई है। मैं तो इसके बारे में अभी सोचता तो बहुत हूँ, दुआएं भी करता हूँ, इस्लाह भी करता हूँ जहाँ कहीं मिले, लेकिन मुझे तो शक है वो किसी दिन ये ना कह दे कि शैतान साहब हाफिज़हुल्लाह होता है। जो बात बंदे को पता नहीं है कि मैंने यहाँ बात क्या करनी है या क्या करनी चाहिए या कैसी बात करनी चाहिए। ये तो उसने जो कहा है ना कि मिर्ज़ा साहब को काफिर ना कहो, एहतराम करो, ये तो ऐसे ही है कि मतलब नानी ने खसम कीता तो पैड़ा कीता करके छड़िया तो उस तो पैड़ा कीता। एक बात पे शर्मिंदा होने की बजाय कहना कि उसने उसको काफिर ना कहो। फिर नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम किधर गया? बात ये है ख़त्म नबूवत कहाँ गई? बात ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं करता, हम कभी भी उसका एहतराम नहीं करेंगे। मिर्ज़ा साहब को साहब कहने वाले या ये कहने वाले कि मिर्ज़ा को काफिर ना कहो, वो लोग ही कह सकते हैं जो ईमान शर्म और हया से आरी हैं। जिनमें ईमान और शर्म हया है वो कभी गुलाम अहमद कादियानी को ना साहब कह सकते हैं, ना उसको ये कह सकते हैं कि वो मुसलमान था, बल्कि वो जलीलों का, कमीनों का आईजी था और उनका बहुत बड़ा सरपंच था। और पंजाबी बोली च कि खच्चां दी खच ते चवलां दा चवल ते चवलटां दा चवलट।